बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Students, first of all, I would like to congratulate you for being the student of class 9. This is your first online class with your physics teacher. But before starting our class, I would like to initiate my class with the reference of circular issued on 8th July 2020 by Sindh Board of Chairman Committee, which declares that 9th class will be examined with new scheme of studies for the annual examination 2021. Therefore, the management of Iqra Hufaz Girls Secondary School has decided to follow new scheme of studies for physics, maths, Urdu and Islamiyat. जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर 2019 में सिंध की वज़ारत तालीम ने ये ऐलान जारी किया था कि आइंदा साल 2020-21 से जमात 9 और 2021-22 से जमात 9 में मज़ामीन की तरतीब मुल्क के दीगर सूबों की तरह हो जाएगी, यानी साइंस के मज़ामीन फिज़िक्स, रियाजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मज़ामीन जमात 9 व 10 दोनों में पढ़ाए जाएंगे। आप जानते हैं कि इससे कबल केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिर्फ जमात 9 में और फिज़िक्स और रियाजी सिर्फ जमात 9 में पढ़ाए जाते थे, मगर इस ऐलानिया के बाद जो कि जारी हुआ है 8 जुलाई 2020 को, बोर्ड ने फिर एक इस बात की तजदीद अहद वफ़ाई कर दी है कि 2021 में जमात 9 के इम्तिहानात 2019 दिसंबर में किए गए फैसले के मुताबिक होंगे। लिहाजा इदारे ने फैसला किया है कि जमात 9 को आइंदा से बोर्ड की नई तालीमी तरतीब के मुताबिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्यूटर में चॉइस होती है के साथ साथ फिज़िक्स और रियाजी भी पढ़ाई जाएगी। इसी तरह सिंध बोर्ड ने जो फैसला किया है कि जमात 9 में बजाय सिंधी और पीएचडी के उर्दू और इस्लामियात पढ़ाई जाएगी और सिंधी और पीएचडी जमात 9 में होंगे। लिहाजा आइंदा आपको बजाय सिंधी और पीएचडी के क्लास 9 में उर्दू और इस्लामियात की वीडियोज़ भी भेजी जाएंगी और मज़ामीन की तरतीब भी पीएचडी और सिंधी के बजाय उर्दू और इस्लामियात की ही होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं हम खुसूसियत के साथ फिजिक्स की। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी कि ये फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास है और मैं आपको इसमें इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी उस सिलेबस के हवाले से कि आपको फिजिक्स के अंदर क्लास 9 की फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। दिस इज द सिलेबस ऑफ द चैप्टर दैट इज इन क्लास 9। द यूनिट्स दैट आर इंक्लूडेड in the curriculum of class 9 are visible on the board. These are the 10 chapters. Unit number 1, that is introduction. Unit number 2, measurement. Unit number 3, kinematics of linear motion. Unit number 4, motion and force. Unit number 5, vectors. Unit number 6, equilibrium. Unit number 7 is circular motion and gravitation. Unit number 8 is work, power and energy. Unit number 10 is properties of matter and unit number 11 is heat. Unit number 9, that is machines. The name of the chapter unit number 9 is machines, and similarly unit number 12, waves and sound. Unit number 13, propagation and reflection of light, whereas 14, reflection of light and optical instruments. 15, nature of light and electromagnetic spectrum. 16, electricity. 17, magnetism and electromagnetism. 18, electronics, and 19, nuclear physics. These 9 chapters are included in the curriculum of class 9. Okay? So, let's focus on these 10 chapters. What we are going to study in these 10 chapters in class 9. In introduction, definitely you are going to get the introductory class of physics, that is what is physics all around us. Then we are going to study the branches of physics as well, and then in this chapter we are also going to study the contributions of Muslim scientists. Definitely
previous classes you have also studied physics, like you have studied few of the topics of physics like reflection, refraction and such kind of gravitation and such kind of topics you have studied in previous classes as well, like in 6, 7, 8 as well. But you are in that classes you are just still definitions. But in this chapter, now you are going to study details of these terminologies. Okay. Then we will discuss about chapter number 2, that is measurement. Like दिन रात में कई दफ़ा आपका पाला पड़ता है, कुछ खरीदना, कुछ लेन देन चलती रहती है, खरीद फरोख्त जारी रहती है। तो वो खरीद फरोख्त किस तरह से होती है? डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट का अमल दखल होता है। आप ऐसे तो नहीं ना कोई भी चीज़ चाहते हैं, दुकान पे गए कपड़ा लेने के लिए पूरा थान खा के लेके आ गए, जबकि ज़रूरत सिर्फ 2-4 मीटर की हो, तो ऐसा तो नहीं पूरा थान खा के लेके आ जाएंगे। या ऐसा तो नहीं कि जब आप किसी किराने की दुकान पे जाएंगे ग्रोसरी करने के लिए या किसी और पर्पस के लिए, या सब्जियां वगैरह कभी अम्मी अब्बा के साथ इत्तेफाक हुआ जाने का, तो ये तो नहीं पूरा उनका ठेला उठा के लिए आ जाते होंगे। यकीन तो कुछ ना कुछ खुसूसियत स्पेसिफिक मेजरमेंट लाते होंगे ना, जितनी आपको जरूरत होती होगी। इसी तरह से आप फिर ये भी जानते होंगे कि जो कोई भी आप ले रहे हैं वो स्पेसिफिक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो उन मेजरमेंट्स की स्टडी किसी जो जिस यूनिट के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, जैसे किलोग्राम, मीटर्स, इन तमाम चीज़ों की स्टडी आपको कहाँ मिलेगी? मेजरमेंट में। थर्ड चैप्टर किनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन में आपको पता है ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं, आप इसमें मोशंस की टाइप्स को स्टडी करेंगे। फिर जब मोशन की टाइप्स को स्टडी करके इसमें जो लीनियर मोशन की स्टडी करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो सीधी लाइन में मूव करते हैं उनके बारे में मजीद डिटेल्स, मजीद फिनोमेना आपको और हासिल होगी इस चैप्टर के अंदर कि किस स्पीड से बॉडी मूव कर रही है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर जो है क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो दीगर फिनोमेना जो आपको बता रही हूँ ना, इंशाल्लाह जब ये चैप्टर शुरू होंगे तो हम आपको इसकी डिटेल्स में बताएंगे कि ये जो मैं आपको जिक्र कर रही हूँ क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना। फिर हम मोशन फोर्स की बात करेंगे कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो क्या कौन सी फोर्स लग रही है, आया फोर्स लग भी रही है कि नहीं लग रही है। अगर फोर्स लग रही है तो फिर आपको ये भी पता होगा कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, उसके ऊपर जो है वो फोर्स लगती है तो मूवमेंट शुरू कर देती है। ऐसा होता है कि नहीं? किसी को धक्का मारा हो कभी आपने, मजाक नहीं सही, जो कि गलत आदत है। आपने देखा होगा कि कभी आप किसी को जब कोई रेस्ट पोजीशन होता है हल्का सा भी धक्का लग जाता है तो वो बॉडी क्या हो जाती है, वो उसका हरकत करना शुरू हो जाती होती है, वो मुतहर्रिक हो जाती होती है। तो ऐसी डिटेल्स आप कहाँ पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर एट दैट टाइम वाज मोशन एंड फोर्स। ठीक है ना। फिर हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी डिटेल्स आप देखेंगे। 2 किस्म के फिनोमेना यहाँ पे आप पढ़ेंगे, स्केलर्स और वेक्टर्स, उनकी डिटेल्स आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में। जब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम में आप क्या पढ़ेंगे? आप इक्विलिब्रियम में ऐसी बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे जिन पर मुस्तकिल फोर्स लग रही है, आया वो फिर भी रेस्ट पोजीशन में है या आया वो हरकत कर रहे हैं। ठीक है ना। दोनों कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम किस तरह से शो कर रहे होते हैं, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे, इसके अलावा हम काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो कि है यूनिट नंबर 6। इसमें हम दीगर और टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी आपको जो है वो वाक़ियत हासिल होगी, जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में आप पढ़ेंगे और इसके अलावा दीगर और चीज़ें भी आप पढ़ेंगे इसमें। जब यूनिट नंबर 7 की बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जब बॉडी सर्कुलर डायरेक्शन में, सर्कुलर वे में मूव कर रहा हो, गोल दायरे में मूव कर रहा हो, तो ऐसी बॉडीज की हरकत को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन को कहते हैं। और ग्रेविटेशन के बारे में तो वैसे ही आप जो है प्रीवियस क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ चुके होंगे कि कोई भी चीज़ कभी नीचे गिरती है या हम खड़े हैं, आप खड़े हैं ज़मीन पे, तो किस वजह से खड़े हुए हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से खड़े हुए हैं। वरना तो पता है मून में लोग जो है स्पेस पे तैरते रहते हैं, आपको पता है, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती है, लिहाजा वहाँ पे स्टे करना, ज़मीन पर इस तरह से स्टे करना नामुमकिन से होता है। बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 8 की, वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क 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 बहुत आम कॉमन सा वर्ड है आपका, आज मुझे ये वर्क मिला है, आज मुझे ये काम मिला है, मैंने ये काम किया। मगर हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर इस वर्क को, पावर को और एनर्जी को फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखेंगे। फिजिक्स के अंदर जो है वो दीगर फॉर्मूले होते हैं, उसके हिसाब से हम वर्क, पावर, एनर्जी की स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये बात करते हैं यूनिट नंबर 10 की, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। As all of you know that matter exists in 3 forms, that is solid, liquid and gases. इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, जब वो किसी चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज पैदा हो जाती होती हैं। इन तमाम और इसके अलावा ऐसे दीगर लॉज भी हैं जो मैटर से रेलिवेंट के साथ हैं, तो इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे इनको हम चैप्टर नंबर 10 दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। और लास्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे
हीट, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपने हीट एनर्जी से इस्तेमाल होने वाली जो गर्म होने वाली चीज़ें, हीट एनर्जी से होने वाली चेंजेस, और इसके अलावा ऐसे कुछ डेरिवेशंस भी आप पढ़ेंगे। डेरिवेशंस क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो कि हीट से रेलिवेंसी के साथ होंगी वो आप कहाँ पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 11 में। अब बात करते हैं कुछ इस तरह से कि इंट्रोडक्शन जो है वो थियोरेटिकल चैप्टर होगा। मेजरमेंट के अंदर ये है कि वो भी थियोरेटिकल ही होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसमें ये है कि इसमें आप ऐसी चीज़ों को भी पढ़ेंगे कि जैसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट से किलोग्राम में कोई चीज़ दी हुई है तो उसको ग्राम में कैसे करना है, अगर आवर्स में कोई चीज़ दी हुई है तो उसको सेकेंड्स में कैसे करना है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। बात करते हैं हम किनेमेटिक्स और लीनियर मोशन में, तो यहाँ पे तो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मुझे तो बहुत पसंद है भाई, वो है न्यूमेरिकल्स, और वो गेनिंग भी होते हैं, मार्क्स गेनिंग होते हैं। इट वाज जस्ट लाइक मैथ, इट इज जस्ट लाइक मैथ्स। तो वो आपके लिए यहाँ से शुरू हो जाएंगे चैप्टर नंबर 3 से। इसमें कुछ डेरिवेशंस भी होंगी और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी होंगे। और डेरिवेशंस के बारे में बताते चलो कि डेरिवेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। देखिए बेटा, कोई भी चीज़ जब आप स्टडी करते हैं ना, तो अगर आप उसको मुश्किल जान के स्टडी करेंगे तो मुश्किल ही रहेगी। अगर आप उसमें दिलचस्पी लेंगे और आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो यकीनी तौर पर वो भरपूर दिलचस्पी आपके काम को आसान से आसानतर बनाती चली जाएगी। तो कभी भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि कभी भी किसी चीज़ को मुश्किल ना जानना। जो चीज़ सीखनी है उसको आप ईजी और स्मूथली सीखते चले जाओगे, वक्त के साथ साथ आप दिलचस्पी के साथ पढ़ते चले जाओगे, तो इंशाअल्लाह जी सारे रास्ते क्लियर होते जाएंगे और आपको हर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी आपको जो अगर आसान समझ के करेंगे, मुश्किल समझ के शकील समझ के ना करें बल्कि आसान समझ के करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी आसानी फरमाएंगे। इसी तरह से मोशन एंड फोर्स में भी डेरिवेशंस होंगी, न्यूमेरिकल्स होंगी, वेक्टर्स में भी न्यूमेरिकल्स होंगे। इक्विलिब्रियम में ऐसा कोई डेरिवेशन तो नहीं है, हाँ अलबत्ता न्यूमेरिकल्स इसमें मौजूद हैं। हाँ, बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, वर्क पावर की, तो इनके अंदर भी छोटी छोटी डेरिवेशंस मौजूद हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एज सच कोई डेरिवेशन तो नहीं है, हाँ अलबत्ता इसमें हम वेरीफाई करेंगे कुछ लॉज को एनालिटिकल अप्रोच के साथ, तो वो हम इस चैप्टर के दौरान करेंगे। और हीट के अंदर भी छोटी मोटी डेरिवेशंस प्लस न्यूमेरिकल्स भी हम पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न के अंदर जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में आप लोग की आदत रही होगी कि आप सबसे पहला पार्ट हमारा होता है पार्ट नंबर ए एमसीक्यूज से रेलेवेंसी के साथ, तो यहाँ पे भी एमसीक्यूज ही होंगे। फिर आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी अटेम्प्ट करते आए होंगे अब तक, तो फिजिक्स के पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे प्लस माई इंटरेस्टिंग एंड इंशाल्लाह होप्स हो कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगेंगे न्यूमेरिकल्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स का मबनी होगा हमारा सेक्शन बी और सेक्शन सी होगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे मबनी। तो इस तरीके से हमारा जो है मैंने आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया हमारे इस नए सब्जेक्ट को, जो कि यूँ तो नया नहीं है, वो आपके लिए बस जमात नहूम में फर्स्ट टाइम पढ़ाया जा रहा है नई स्कीम ऑफ स्टडीज के साथ। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो आप भी इंटरेस्ट महसूस करेंगे और दिलचस्पी के साथ मेरे साथ चलेंगे। हाँ, किताबें जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स, तो कवर पेपर कुछ भी चेंज हो, टाइटल पेज जो भी हो, थोड़ा कलर चेंज हो सकता है, मगर इसके अंदर मैटर जो है वो जो सिलेबस जो है वो बिल्कुल इन्हीं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग होगा इंशाल्लाह। सही है, तो इंशाल्लाह अजीज नेक्स्ट क्लास तक फिर हम जो है आपसे मजीद जो है वो इसकी चैप्टर नंबर 1 के साथ हम नए लेक्चर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह ने के बाद।